Dear students, this is your teacher Pradeep Kumar. Today we are going to read the second part of this story, Rip Van Winkle. आज का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है. लेट्स रीड एंड नो कि जानते हैं कि रिप वैन विंकल पहाड़ पर जब गया तो उसके बाद वो उसके साथ क्या क्या वहाँ पर हुआ. लेट्स रीड दिस स्टोरी रिप वैन विंकल. Let's start the reading of next part. Suddenly, he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. He made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the stranger, who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. The only sound was the noise of the balls, which echoed in the mountains like thunder. As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. He looked around for Wolf, but he was now here. Rip whistled for him. "Wolf, Wolf!" he then shouted. No dog was to be seen. "Where has this dog gone?" he muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. अचानक उसने एक आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने देखा, चारों ओर देखा तो उसे एक छोटा बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके घने बाल थे और ग्रिजल्ड बियर्ड थी और बड़ी अजीब सी दाढ़ी थी, और जो उसकी तरफ एक बैरल उठाकर आ रहा था. He made signs to help him carry the barrel. उसने उसको इशारा किया उस बैरल को उसके साथ उठाने में मदद करने के लिए. Rip hurried to help the stranger who caught his hand tightly. रिप ने जल्दी से उस आदमी की सहायता करने के लिए शीघ्रता की जिसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. वे साथ ही चलते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए, एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर और विचित्र दिखाई देने वाले लोग थे जो 9 पिन गेम खेल रहे थे. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. वे उसी एक ही प्रकार के सेम तरह के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे और उनकी जो ड्रेस थी और जो एक जैसी थी और उनकी जो दाढ़ी थी वो अलग अलग विभिन्न आकृतियों की थी और अलग अलग रंगों की थी. Even though they were playing a game, even though वे जबकि वे गेम खेल रहे थे, their faces were serious and there was silence. उनके जो चेहरे थे वो गंभीर हो गए थे और वहाँ पर चुप्पी फैली हुई थी, साइलेंस था, शांत थे, वो चुप थे. The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. Echoed होता है गूंजना, माउंटेन्स पर्वत पहाड़ में टकरा कर वो आवाज़ वहाँ पर बॉल जो गेंद वो खेल रहे थे 9 पिंस जो उसका शोर उसकी आवाज़ वहाँ गूंज रही थी बिजली की तरह, थंडर.
As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. गेज का मतलब होता है बच्चों एकटक होकर देखना, घूरना। तो फिक्स्ड गेज मतलब वो एक जगह खड़े हो गए और वो उन्हें देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटन्ड, फ्राइटन मतलब डरना, डरा हुआ। वो रिप जो था वो एकदम से थोड़ा डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। उसका जो साथी जो छोटा बूढ़ा आदमी जो था उसने एम्प्टी का मतलब खाली कर दिया, एम्प्टीड खाली कर दिया बैरल से जो कंटेंट होता है, जो उसमें सामान था, जो मिश्रण था उसमें, जो चीज़ थी उसमें, उसको खाली कर दिया और उसको ग्लास में खाली कर दिया और रिप को पीने के लिए दिया। रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। फियर होता है डर और ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। रिप ने उसका पालन किया क्योंकि वह उससे भय से डर भी रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप। अब क्योंकि वह प्यासा भी था तो उसने कुछ और ग्लास जो थे उसके पी लिए। जो पेय पदार्थ जो था उसने दिया था उसे, उसको उसने और कुछ गिलास पी लिए थे और धीरे धीरे वह एक गहरी नींद में सो गया। ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और जब वो जागा तो उसने वहाँ पाया कि वह जहाँ पर ही हैड, वह उस छोटे आदमी को पहले मिला था। ही रब्ड हिज आइज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। जब वह उसने अपनी आंखों को मला और देखा तो एक चमकदार सुबह थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट। मुझे लगता है कि मैं पूरी रात शायद नहीं सोया, रिप ने सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ। वह अपने साथी वॉल्फ के लिए चारों ओर देखने लगा, बट वह कहीं भी नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम। रिप ने उसके लिए विसल बजाई और आवाज़ दी, वॉल्फ वॉल्फ। वह चिल्लाया, बट कोई भी कुत्ता वहाँ पर नहीं था। वेयर वाज दिस डॉग गॉन। उसने कहा कि वेयर हैज दिस डॉग गॉन, कि ये कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मटर्ड मतलब अपने आप में बुदबुदाना या अपने मन में कुछ बोलना, बड़बड़ाना। तो उसने अपने आप से कहा कि ये कुत्ता कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। और वह पहाड़ से नीचे उतरने लगा, अपने गांव की तरफ वापस आने लगा। डिसेंड होता है नीचे आना। आपकी वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज डिक्शनरी। आपने जो वर्ड्स है उनका सही मीनिंग आपने सर्कल करना है। तो वर्ड है डिसेंड, इसके ऑप्शन है टू नॉट सेंड, टू बी डिसेंड, टू मूव डाउन। बैरल सेकंड वर्ड, अ वुडन कंटेनर, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अ बैग। थर्ड वर्ड कंटेंट्स, टू बी हैप्पी, इंग्रेडिएंट्स, द इंडेक्स ऑफ अ बुक। इनमें से आपने सही वर्ड पर घेरा लगाना है। एंड द आंसर इज डिसेंड का सही मीनिंग है टू मूव डाउन, मतलब नीचे आना। बैरल का सही वर्ड मीनिंग है अ वुडन कंटेनर, एक लकड़ी का बर्तन जिसमें कोई पेय पदार्थ या कोई सामग्री रखी जाती है। कंटेंट्स का है द इंग्रेडिएंट्स, मतलब कोई सामग्री, कोई जो चीज़। आपकी वर्कशीट में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मैन ऑन द माउंटेन्स। पहाड़ पर व्यक्तियों में क्या चीज़ें अजीब थीं। तो आंसर है नंबर 1, दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे। नंबर 2, दे ऑल हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। नंबर 3, देयर फेसेस वर सीरियस। नंबर 4, दे वर कंप्लीटली साइलेंट। And the very last question is question number 3, what kind of man was Rip Van Winkle? Rip Van Winkle किस प्रकार का व्यक्ति था। आंसर नंबर 1, he was a kind neighbor. Number 2, he was ready to help anyone. Number 3, he loved children and told them stories. Number 4, he was a lazy man. तो बच्चों आपने यह सारी जो वर्कशीट मैंने सॉल्व करके आपको बताई है, आपको जब ये वर्कशीट में आएगी तो आप इसे सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। आप इस लेसन को बार बार पढ़ें और जो न्यू वर्ड्स हमने बताएं उसको भी आप ध्यान में रखें। स्टे होम, स्टे